یہ خبر ہیرا پر بجلی بن کے گری تھی کہ افسانہ کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں امی جان نے ان سب کو گاؤں بلایا ہے۔ ہیرا نے کال کر کے اپنی بھابھی کو فوراً یہ بات بتائی۔ ہیرا، جانا کب ہے تم لوگوں نے گاؤں؟ ہیرا کی بھابھی نے اس سے پوچھا۔ بھابھی، عامر کہہ رہے تھے کہ ہفتے کو جائیں گے، تم اپنی تیاری رکھنا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ ہیرا، ابھی میں تمہارے پاس آ رہی ہوں تاکہ ہم دونوں یہیں مل کر پلان کر سکیں شمائل سے جان چھڑوانے کے لیے، ہیرا کی بھابھی نے کہا، اور فون بند کر کے ہیرا ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زارا کلیکشن کی دوسری ڈیلیوری کا مال پہلے سے بھی زیادہ پسند کیا گیا، بلکہ 1-2 کسٹمرز نے بڑے بڑے برانڈز چھوڑ کر شادی کی ڈریسنگ کی بکنگ کے لیے بھی زارا کلیکشن کو ہائر کر لیا۔ سمجھ جان، جو کہ گزشتہ 50 سال سے فیشن انڈسٹری کا تجربہ کار بندہ تھا، ایک شام اپنے بیٹے شاہمیر کو زارا کلیکشن کی ساری ڈیٹیلز جمع کر کے اپنے آفس میں آنے کے لیے کہا۔ اب دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے اس پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ بیٹا، اس ڈیٹیل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مس زارا ابھی کافی ناتجربہ کار ہے اور اس فیلڈ میں بالکل نئی ہے۔ یس ڈیڈ، اس کی ہم سے پہلے کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، شاہمیر نے ساری تفصیل اپنے ڈیڈ کو دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ زارا کی لیپ ٹاپ میں لگی تصویر پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ شاہمیر، یہ لڑکی نہیں بلکہ وہ ہیرا ہے جو صدیوں تلاش کرنے کے بعد جوہری کے ہاتھ لگتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ اس بار یہ ہیرا ہم نے تلاش کر ہی لیا۔ تم سارے کام چھوڑ کر کل ہی پاکستان چلے جاؤ، اس سے مل کر اسے پوری بزنس کی ٹریننگ دو۔ حمید سے پہلے اپنا نیو برانڈ زارا شاہ کے نام سے انڈسٹری میں لانچ کریں گے، اور مجھے 100 نہیں 101% یقین ہے کہ اس بار گولڈن آئیز کا بیڑا غرق ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، جیسے انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا۔ سمجھ جان کو ابھی تک گولڈن آئیز کے ہاتھوں فیشن انڈسٹری میں اپنی عبرتناک شکست بھولی نہیں تھی۔ جی ڈیڈ، میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ شاہمیر دوسرے دن شام کی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گیا۔ شام کو ہی عابدہ نے کال کر کے امی کو خوشخبری سنائی کہ اس کے شوہر ولید کو باہر اسٹڈی کے لیے اسکالرشپ مل گیا ہے اور وہ اس ماہ ہی لندن روانہ ہو جائیں گے۔ سب نے باری باری عابدہ کو مبارکباد دی اور فون بند کر کے رضیہ کے سرہانے رکھ دیا۔ رضیہ نے موبائل سرہانے سے اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح پھر سے شمائل کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ شمائل کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ شمائل، موسم بہت خراب ہے، کہیں نہیں جانا باہر، اگر بارش شروع ہو گئی تو تمہیں سردی نہ لگ جائے، عامر نے شمائل کی لانگ ڈرائیو پر جانے کی ضد کے جواب میں کہا۔ پلیز چلیں، دیکھیں تو صحیح کتنا سہانا موسم ہو رہا ہے، شمائل نے کھڑکی سے باہر سیاہ بادلوں کو آسمان پر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے دیکھ کر رومانٹک انداز میں کہا، مگر عامر نے ٹکا سا جواب دے دیا جس سے شمائل منہ پھلا کر کمبل میں گھس گئی۔ اچھا چلو اٹھو، مگر زیادہ دور نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ شمائل نے جلدی سے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں ڈرائیو کرتے شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی تیز بارش میں بدل گئی۔ عامر نے گاڑی سڑک کے کنارے روک لی کہ اچانک شمائل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے کسی گاؤں کی طرف جاتی ہوئی کچی سڑک کی جانب چل دی۔ عامر نے غصے سے گاڑی سے باہر آتے ہوئے شمائل کو آواز دی، مگر وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑی رہی۔ عامر اسے واپس لانے کے لیے جب شمائل کے قریب آیا تو اس نے اس تیز بارش میں دوڑ لگا دی۔ عامر، پکڑو مجھے اگر پکڑ سکتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ عامر کا سانس اوپر کا اوپر ہی رک گیا اسے کچی سڑک پر بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہ کہیں یہ پھسل کر گر نہ جائے۔ رکو شمائل، ٹھہرو، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور جوں ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا تو عامر کا پاؤں پھسل کر سڑک کے گارے میں گر گیا۔ اس کی مٹی سے لتڑی ہوئی حالت دیکھ کر شمائل لگاتار ہنسے چلے جا رہی تھی۔ عامر، تم تو کہتے تھے کہ تم اور افسانہ گاؤں کی کچی سڑک پر بھاگتے تھے تو افسانہ گرتی تھی اور تم اس پر ہنستے تھے، آج الٹ نہیں ہو گیا؟ ضرور افسانہ بھی یہیں کہیں ہمارے ارد گرد ہی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ہنس رہی ہوگی، شمائل نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ عامر کے کانوں میں بارش کی بوندوں کی رمجھم کے ساتھ ساتھ افسانہ کی ہنسی کی جھنکار بھی گونجنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے شمائل نہیں سامنے افسانہ کھڑی ہو جو اترا کر اس سے کہہ رہی ہو، دیکھا، لے لیا نا میں نے تم سے اپنا پرانا بدلہ۔ اور پھر شمائل بھی اس کے پاس ہی اس سڑک پر بیٹھ گئی۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بنا کچھ کہے بتاتے رہے۔ پاکستان پہنچ کر شامیر صبح سے نہ جانے کتنی بار ٹرائی کر چکا تھا، مگر ہر بار جواب ملتا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر عارضی طور پر بند ہے۔ او شٹ یار، کیا مصیبت ہے، ڈیڈ کی رات سے 4 بار کال آ چکی ہے کہ زارا سے ملے کہ نہیں۔ اس نے مینیجر کو کال کر کے زارا کا کوئی دوسرا فون نمبر پوچھا۔
सर दूसरा नंबर तो कोई नहीं, अलबत्ता मिस ज़ारा का एड्रेस है मेरे पास। मेरा ख्याल है कि आप उनके घर जाकर उनसे मिल लें। मैनेजर ने मशवरा दिया। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। शामिर ने मायूस होकर सोचा। 2 बजे के करीब वो ज़ारा के मोहल्ले में जा पहुंचा। इधर उधर गलियों में झांकते हुए उसने एक राह चलते आदमी को रोककर उससे ज़ारा के घर के बारे में पूछा। जी मुझे नहीं पता। वो शख्स महंगी कार में यूं एक नौजवान और हैंडसम लड़के का सरेआम किसी लड़की के घर का एड्रेस मालूम करने की वजह से उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। शामिर ने गाड़ी दूसरी गली की तरफ घुमा दी और दोबारा गौर से एड्रेस पढ़ने लगा। गली नंबर 17 तो यही थी जिसमें वो खड़ा था, नज़द नियाज करियाना स्टोर। शामिर ने इधर उधर सड़क के किनारे दुकानों के बोर्ड पढ़ने शुरू कर दिए। आखिर उसे नियाज करियाना स्टोर का बोर्ड नजर आ ही गया। शामिर ने दिल में लाख बार शुक्र अदा किया और उसी नियाज करियाना स्टोर की तरफ एड्रेस पूछने चल पड़ा। मिस ज़ारा का घर वो सामने पहली नुक्कड़ मुड़ते ही दूसरे नंबर पर सफ़ेद गेट वाला है। दुकान में मौजूद आदमी ने एड्रेस समझाते हुए कहा। शामिर ने नुक्कड़ मुड़ते ही सफ़ेद गेट खटखटाया तो अंदर से कोई 7-8 साल की बच्ची बरामद हुई। बेटा मुझे मिस ज़ारा से मिलना है, क्या यही उनका घर है? शामिर ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा। जी भाई, मैं उनकी छोटी बहन। आप रुके, मैं बुलाती हूँ आप ही को। और वो शामिर को दरवाजे पर छोड़कर अंदर चली गई। दरवाज़ा खोलते ही ज़ारा बगैर कुछ पूछे देखे बोलना शुरू हो गई। देखिए मिस्टर, रात से आपने कॉल्स कर कर के मेरा जीना हराम किया हुआ है और अब मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो खुद आ गए अपनी मनहूस शक्ल लेकर। मैंने आपको फ़ोन पे ही बता दिया था ना कि मैं किसी सुमेरा को नहीं जानती। आखिर किस मट्टी से बने हैं आप जो आप पे असर ही नहीं होता मेरी किसी बात का, ढीठ कहीं के। ज़ारा ने थोड़ी देर के लिए सांस लिया तो शामिर जल्दी से बोल पड़ा। वो मैं सुमेरा का कुछ नहीं लगता, मुझे मिस ज़ारा से मिलना है। यकीन करें मैं कल ही सीधा इंग्लैंड से आया हूँ। समझ जान गारमेंट्स इंडस्ट्री का ऑनर शामिर जान। शामिर ने ज़ारा के बिगड़े हुए तेवर देखकर जल्दी जल्दी अपना तारुफ करवाया। ज़ारा का गुस्सा यकदम हैरत में बदल गया। सर आप यहाँ मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाती ऑफिस। ज़ारा ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। जी की थी, आपका मोबाइल बंद है सुबह से ही। ओह सॉरी सर, वो इसी सुमेरा वाले चक्कर में मैंने बंद करके रखा हुआ है। आप 1 मिनट रुके, मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। ज़ारा ने इधर उधर गली में दरवाज़ों की ओर झांकती औरतों की हैरत और मशकूक निगाहों को महसूस करते हुए कहा। दोनों ने वहीं बैठकर सारी तफसीलात तय की। इतनी देर में रज़िया चाय के साथ मुख्तलिफ लवाजमात ट्रे में रखे ले आई। सर इनसे मिलें, ये मेरी अम्मी जान है, ज़ारा ने तारुफ करवाते हुए कहा। रज़िया को छोटी की ज़ुबानी शामिर की आमद की खबर मिल चुकी थी। जी आंटी अस्सलाम वालेकुम। शामिर ने कुर्सी से खड़े होकर बड़े अदब से कहा। अरे बेटा बैठे रहो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। रज़िया ने प्यार से सर पर हाथ फेरा। दूसरे रोज़ दोनों ने अपनी कंपनी के नए ब्रांड ज़ारा शाह की शुरुआत कर दी, जिसके मुकम्मल करने के लिए उन्हें सिर्फ 4 माह का कलील वक्त मिला था। ज़ारा और शामिर ने उसकी कामयाबी के लिए दिन रात एक किए हुए थे। शामिर समझ जान का कोई बिगड़ा हुआ नवाबजादा टाइप बेटा नहीं था, बल्कि बहुत ही समझदार और ज़िम्मेदार लड़का था। जब आज से 7 साल पहले समझ जान ने बहुत ही मेहनत और बेपनाह पैसा खर्च करके गुलजान के नाम से न्यू ब्रांड लॉन्च करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली थी, तो उसके हरीफ गोल्डन आइकॉन ने ना जाने उसके कैसे सारे के सारे आइडियाज़ चुरा कर उनसे पहले फैशन की दुनिया में अपना ब्रांड गोल्डन आइज के नाम से लॉन्च कर दिया, जिससे समझ जान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और अगर यूं कहा जाता कि वो अर्श से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा था तो गलत ना होगा। ऐसे में उनके बेटे शामिर ने दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी की साख को संभाला दिया था। और अगर 2 साल बाद समझ जान दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया था तो उसका मेन क्रेडिट शामिर की मेहनत ही को जाता था। और आज 7 साल बाद समझ जान ने फिर वही जुआ खेलने का फैसला किया था, आज अपने लेख आजमाने के लिए एक मर्तबा फिर, मगर इस बार उसकी सारी निगरानी शामिर के सपुर्द थी, जो पिछली गलतियों को जहन में रखकर सारी प्लानिंग कर रहा था। ज़ारा उसकी सोच से कहीं ज़्यादा मेहनती थी। अपने काम में ऐसे गुम हो जाती कि अपने खाने पीने का होश ना रहता उसे। अक्सर रात के 2-2 बजे तक दोनों वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते रहते। वो एक एक चीज़ को 10-10 बार चेक करके बड़े ध्यान से सिलेक्ट करती और अक्सर अपने डिज़ाइन के लिए मतलूबा चीज़ें ना मिलने पर जहाँ भी जिस शहर में भी उनकी मौजूदगी का पता चलता, शामिर के साथ खुद जाकर पसंद करके लाती। हीरा की भाभी ने हीरा के घर पहुंचते ही अपने प्लान पर अमल शुरू कर दिया। उसने एक नर्स से शुमाइल के बच्चे को ज़ाया करने के लिए 20,000 की खतीर रकम के एवज़ वो मेडिसिन खरीदी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता
2-3 दिन के अंदर अपना काम ऐसे तरीके से करती थी कि किसी को ज़रा सा भी शक ना होता कि उसे कुछ दिया गया है। हिरा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से काफ़ी हद तक शुमाइल और आमिर का भरोसा जीत चुकी थी, इसीलिए उस पर किसी को शक भी नहीं होना था। बस अब ये दवा किसी तरह शुमाइल को खिलानी थी। दवाई का रंग सफ़ेद था, इसलिए दोनों ने काफ़ी सोच समझकर मीठे दूध में मिक्स करके शुमाइल को पिलाने का फ़ैसला किया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि आमिर के जाने के बाद वो अपना काम आसानी से कर सकें। रात के 3 बजे थे जब आमिर की अम्मी यकदम एक बहुत ही डरावने ख्वाब से उठकर बैठी। उन्होंने अफसाना की मौत से पहले भी ऐसा ही ख्वाब देखा था कि अफसाना एक ताज़ा खोदी हुई कब्र के पास खड़ी है और एक स्याह रंग की इंतहाई बदसूरत डाइन नुमा औरत का हाथ उसे खींचकर कब्र में ले जाने की कोशिश कर रही है और अफसाना ज़ोर ज़ोर से चीख कर उसे मदद के लिए पुकार रही है। और उसी रात की सुबह को अफसाना का कत्ल हो गया था। आमिर की अम्मी के दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। या अल्लाह, इतने सालों बाद ये ख्वाब मुझे दोबारा क्यों आया है? अब क्या होने वाला है? उसने वज़ू किया और तहज्जुद पढ़कर अपने सब बच्चों की हिफाजत की दुआएं मांगने लगी। अचानक से उनका ध्यान शुमाइल की तरफ गया। कहीं इस ख्वाब का मतलब ये तो नहीं अफसाना की तरह शुमाइल भी कत्ल? नहीं, ये कोई वहम ही हो सकता है। मगर आमिर की अम्मी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए फजर की नमाज अदा करते ही ड्राइवर को गाड़ी निकालकर शहर चलने को कहा। गांव से शहर जाने में 3 घंटे का वक्त लगता था। अभी 1 घंटा भी ना गुजरा था कि गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। आमिर 8 बजे ऑफिस चला गया और हिरा शुमाइल का हाल पूछने उसके कमरे में चली गई। अरे शुमाइल, तुम दिन ब दिन कितनी वीक होती जा रही हो, ज़रा ध्यान नहीं रखती तुम अपना? हिरा ने मसनूई प्यार दिखाते हुए कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। शुमाइल ने परेशान होकर आईने में अपना चेहरा देखते हुए कहा। अरे कहाँ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल दूध बना कर लाती हूँ जो कि कल ही मैंने भाभी से बनाना सीखा है। तुम तो खुद अपना ख्याल रखोगी नहीं, अब मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। हिरा ये कहते हुए किचन की तरफ वो दूध का गिलास लाने चल पड़ी जो हिरा की भाभी ने उसके लिए रेडी करके रखा था। ये लो मेरी जान, नीम गरम और ताकत से भरपूर दूध पियो, बहुत ही मज़े का है और मैंने बहुत ही प्यार से इसे अपने हाथों से स्पेशल तुम्हारे लिए तैयार किया है। हिरा ने मक्कारी से शुमाइल की तरफ देखते हुए कहा। जी भाभी, इधर रख दे, मैं ज़रा मुंह हाथ धो के फ्रेश हो लूँ तो पीती हूँ। आमिर ने तो मुझे सुबह उठाया ही नहीं, मेरी नमाज भी कज़ा हो गई, वो भी अदा करनी है। ओके, पर दूध पी लेना याद से। हिरा ने हिदायत देकर दरवाज़ा बंद किया और चली गई। शुमाइल ने नमाज पढ़ी तो सलाम फेरते फिर उसे कै आने लगी। दूध का गिलास मुंह को लगाया मगर पीने को दिल ना किया। दोबारा उसे ढांप कर बेड की साइड टेबल पर रखा और आराम करने के लिए लेटी तो पता ही ना चला कि कब आंख लग गई। ड्राइवर ने 2 घंटे की जिदोजहद के बाद गाड़ी स्टार्ट की और जल्द ही शहर पहुंच गया। आमिर की अम्मी की यूं अचानक आमद पर हिरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। बेटा, वो तुम लोगों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए सुबह सुबह ही आ गई। आमिर कहाँ है? उन्होंने हिरा से पूछा। जी वो तो ऑफिस चले गए हैं, हिरा ने आहिस्ता से जवाब दिया। शुमाइल कहाँ है? जी वो अपने कमरे में सो रही है, हिरा ने डरते डरते जवाब दिया। आमिर की अम्मी शुमाइल को देखने के लिए कमरे में चली गई। इधर उधर की बातें करने के बाद आमिर की अम्मी ने शुमाइल को अपने साथ जाने के लिए तैयारी करने का कहा। 1 मिनट अम्मी जान, मैं ये दूध पी लूँ। हिरा का लाया हुआ दूध का गिलास देखा तो उसे याद आया कि हिरा कितने प्यार से उसके लिए दूध लाई थी। अगर उसने ना पिया तो वो क्या सोचेगी। आमिर की अम्मी ने दूध का गिलास शुमाइल को उठाकर पकड़ा दिया, मगर एक घूंट पीते ही उसके अजीबोगरीब जायके की वजह से हिरा का दिल खराब होने लगा और उसे कै आ गई।